بجانا مجھے. تو ہم آپ کی بھی سینڈ بجا دیں گے. پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج 2-3 موضوعات کے حوالے سے بات کریں گے. ایک تو بائی الیکشنز، بڑی اہم قومی اسمبلی کی نشستوں پر وہ ہونے جا رہا ہے 16 اکتوبر کو، اور یہ ایک طرح سے منی جنرل الیکشن یا جنرل الیکشن کا پرولوگ آپ کہہ لیں، اس کا پرلوڈ کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک طرف عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ فوری جنرل الیکشن کروائے جائیں، پارلیمان میں واپس نہیں آنا چاہتے جب تک کہ عام انتخابات کی تاریخ نہ دے دی جائے، لیکن اس کے ساتھ ضمنی الیکشن پاکستان تحریک انصاف ضرور لڑنا چاہ رہی ہے تاکہ وہ پی ڈی ایم کو، مخلوط حکومت کو، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو اور کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنی اسٹریٹ پاور اور اپنی ووٹ پاور کا احساس دلا سکے. یہ سوچ ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اس سوچ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے 16 اکتوبر کو؟ کیا 16 اکتوبر کو عمران خان کو وہ مقبولیت ووٹ کی حد تک حاصل ہو سکتی ہے جو ان کے ذہن میں موجود ہے، یا کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ اپسیٹ عمران خان کو مل سکتا ہے یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو، جن کی فیڈرل گورنمنٹ میں حکومت ہے. پنجاب میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں چند اہم ترین سیٹوں پہ، اس میں کیا سرپرائز مل سکتا ہے، اس میں کیا اپسیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور اس کے باوجود عمران خان پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہے ہیں. آج بھی عمران خان نے الزام لگایا کہ ہر حلقے میں حکومت کی، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ وہ 10 سے 15 ہزار جعلی ووٹ ڈال سکیں تاکہ جیت سکیں. تو پنجاب میں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کو اپسیٹ مل جاتا ہے کوئی، اگر that's a big if again، تو کیا عمران خان کے اس الزام میں کوئی حیثیت رہ جائے گی، اس میں کوئی گراؤنڈ رہ جائے گی؟ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر سیٹیں زیادہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ریگنگ کا، جعلی ووٹ کا، انتخابی دھاندلی کا جو بیانیہ ہے وہ جڑ پکڑے گا، وہ مضبوط ہوگا، یا عمران خان کا بیانیہ کمزور ہوگا؟ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. دوسرا، لانگ مارچ عمران خان کا، یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو بھی بڑی حد تک افیکٹ کرے گا. ابھی تک تاریخ انہوں نے نہیں دی، بار بار وہ کال کی، ایک آخری کال دینے کی ایک بات تو کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو تیار رہنے کی بات تو کر رہے ہیں، ان کو تیار رہنے کا اشارہ تو دے رہے ہیں، ان کو اعلان بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ لانگ مارچ کب ہوگا؟ نومبر کے آخری ہفتے سے پہلے ہوگا؟ اس کی ٹائمنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا عمران خان کا یہ لانگ مارچ کامیاب ہوگا؟ اور کیا پنجاب حکومت اس کے گرنے کا کوئی اندیشہ دسمبر سے پہلے موجود ہے؟ ان چیزوں پر ڈسکشن کریں گے اور آگے کا سیاسی منظرنامہ اب کیا بن رہا ہے. حکومت ورسز عمران خان، کون کہاں پہ کھڑا ہے، کس کو زیادہ ویٹیج حاصل ہوگا آنے والے مہینوں میں، آنے والے دنوں میں؟ ان سب چیزوں پہ، ان سب معاملات پہ بات کریں گے. خاص طور پہ کل جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا ہے، بریت ہوئی ہے ان کی منی لانڈرنگ کے ایک بہت بڑے مبینہ کیس میں. کیا یہ NRO-2 ہے؟ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی خود کو معاف کرنے کے لیے، اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے حکومت میں آئے ہیں، یا سیاسی انتقام کا دور ختم ہو گیا ہے اور اب میرٹ پہ انصاف مل رہا ہے؟ ان سب چیزوں پر، ان سب سوالات پہ آج بات کریں گے اور ان اہم ترین سیاسی اور آگے کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے سوالات کے جواب کھوجنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے پاکستان کے مشہور و معروف مستند معتبر صحافی میرے ساتھ موجود ہیں جو تجزیہ کار بھی ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں. حبیب اکرم صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور شوکت تراچا صاحب سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، آج نیوز پہ اپنا بڑا زبردست پروگرام بھی کرتے ہیں. افتخار احمد صاحب، ضمنی الیکشن جو ابھی 16 اکتوبر کو 3-4 دن کے بعد ہونے جا رہے ہیں، اس میں آپ کو کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا عمران خان اپنے ووٹ کی طاقت کو ریٹین کر پائیں گے، اپنے ووٹ کی طاقت کو، عوام کی طاقت کو؟ بیکاز وہ بار بار کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں. عوام کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے، ووٹ کی طاقت کس کے پلڑے میں جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ عمران خان یا ان کے مقابلتاً پی ڈی ایم کے پلڑے میں؟ ووٹ ڈالنے کے تو لوگ آئیں گے اور یہ ان علاقوں میں میرا خیال ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا ووٹ زیادہ پڑتا ہے
यहाँ वोट की रेशो वही रहती है जो नॉर्मली एक ज़िमनी इंतखाब में होती है। ये होगा मेरे लिए एक अहम सवाल जिसका जवाब मुझे इतवार को मिल जाएगा। और अगर 58 जलसे करने के बाद भी पोलिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पे नहीं भर जाते और टर्नओवर जो 70-80% या 90% नहीं होता, तो फिर तो सोचना पड़ेगा कि इन 58 जलसों का क्या फायदा हुआ। और जो ये मोटिवेशनल कैंपेन है हर वक्त अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हर वक्त टेलीविजन पर और सोशल मीडिया के जरिए जो कैंपेन की जा रही है, इसका क्या फायदा हुआ, कितने लोग मोटिवेट हुए। असल में क्वेश्चन है लोगों की मोटिवेशन का कि क्या लोग इतने मोटिवेट हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो उसका अंदाजा हमें पोलिंग स्टेशन पे हो जाएगा। आप समझते हैं कि इमरान खान अपने वोट की ताकत, आवाम की ताकत, जो उनका बयानिया है उसको रिटेन करने में कामयाब हो जाएंगे? आपको तासुर क्या मिल रहा है? इसका सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। इसका फैसला तो अब पोलिंग स्टेशन पे होगा ना, जब कितने लोग आते हैं, परसेंटेज कितनी बढ़ती है, कंपैरिजन हम करेंगे कि माजी के ज़िमनी इंतखाबात में उस इलाके में कितना वोट पड़ा था, वोट में इजाफा कितना हुआ। यही एक हमारे पास तरीकाकार है, और तो कोई तरीकाकार साइंटिफिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, हबीब अकरम साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रही थी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ताकि आपका स्काइप भी जरा स्टेबल हो जाए। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब जरूर दें, क्योंकि आप बहुत जबरदस्त किस्म की जो है फैक्चुअल रिपोर्टिंग करते हैं, जहां पर भी इलेक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं, और इस इलेक्शंस पर भी आपकी बड़ी गहरी नजर है। तो हबीब अकरम साहब, आपको क्या लगता है कि इमरान खान अपना बयानिया उसको अमली शक्ल देने में कामयाब हो जाएंगे? 10 अप्रैल के बाद से इमरान खान का पहला इलेक्टोरल टेस्ट है ये, क्या उसमें कामयाब हो जाएंगे हबीब साहब इमरान खान? देखिए गरीदा, इससे पहले एक दूसरा टेस्ट, जी ये दूसरा टेस्ट है। इससे पहले का एक टेस्ट उन्होंने बड़ी कामयाबी से वो पास किया था कि जिसमें 20 नशिस्तें थी और उन्होंने उसमें से 15 नशिस्तें जीत ली, और एक नशिस्त जो है उसके ऊपर उनका ख्याल ये है कि उसमें कुछ जोर जबरदस्ती भी की गई है। इसी तरह जो मौजूदा इलेक्शन है, इसमें अगरचे बहुत केयरफुली ये वो सीटें हैं जिनके ऊपर इस्तीफे एक्सेप्ट किए गए हैं। खास तौर पर आप देख लीजिए कि एक जो पिशावर वाली सीट है, उसके अलावा तमाम वो नशिस्तें हैं जिन पर जो फर्क है जीतने और हारने वाले के दरमियान, यानी वो 1000 और 2000 का फर्क है। बाज़ जगह तो ये बिल्कुल चंद 100 का फर्क है। और दूसरा और तीसरे नंबर पे कोई भी दो कैंडिडेट अगर मिल जाते हैं, 2018 में उनके वोट इकट्ठे कर लिए जाते तो पीटीआई का कैंडिडेट नहीं जीत सकता था। तो ये चीज मद्देनजर रखी गई है कि चूंकि मार्जिन बहुत थिन है, तो इस वजह से कोई भी अगर कैंडिडेट, हुकूमत ने सोचा था कि चूंकि वही कैंडिडेट दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस वजह से बड़े आराम से इत्तेहाद यानी पीडीएम अपने ही सारे उम्मीदवारों को इकट्ठा कर लेगा, 1-on-1 मुकाबला किया जाएगा, तो पीटीआई हार जाएगी। लेकिन इसमें इस नहले पे जो दहला था वो इमरान खान का खुद उम्मीदवार होना था, और फिर अभी जैसे इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि मुसलसल जलसों का एक सिलसिला था, एक मोटिवेशन थी, और फिर किसी हद तक उनके बयानिए को एक कबूलियत भी मिल चुकी है। और तीसरी बात ये है कि खुद जो हुकूमत है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे उसे करना चाहिए था या जैसे उसके दावे थे। तो ऐसी सूरत में अब इमरान खान ने समहाउ, आप सेफली ये कह सकते हैं कि केपी में और पंजाब में तो अपना रंग जमा लिया है, और पंजाब में शायद इमरान खान जितनी भी नशिस्तों पे खड़े हुए हैं वो नशिस्तें वो जीत जाए। अगरचे मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान की नशिस्त जो है जिसपे शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी इलेक्शन लड़ रही हैं, वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जीतना मुश्किल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसी के साथ जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि इमरान खान, आपने पहले भी कहा कि इमरान खान का बयानिया जो है वो कबूलियत अवाम में पकड़ चुका है, क्या ये कबूलियत पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब इन सीटों पर मजीद जोर आवर हो सकती है, या यहाँ पे कोई अपसेट मिल सकता है इमरान खान को? और अगर कोई अपसेट मिला तो उसकी वजूहात क्या हो सकती है मुमकिन तौर पे? हबीब साहब, इमरान खान साहब को जो अपसेट, देखिए इमरान खान को ज्यादा यानी उनके लिए अगर अपसेट देखें तो वो ये है कि ये सारी नशिस्तें वो हार जाए। अगर ये सारी नशिस्तें हार जाते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा अपसेट होगा, और फिर ये भी कहा जा सकता है कि उनके बयानिए ने जड़ तो वक्ती तौर पे पकड़ी थी, लेकिन उसके बाद ये तनावर दरख्त में तब्दील नहीं हो सका। और अगर यहाँ पे पंजाब में 2 नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है, एक ननकाना साहब में और एक फैसलाबाद में, और पंजाब की ये दोनों नशिस्तें जीत जाते हैं, तो फिर ये खालिसन सेंट्रल पंजाब की नशिस्तें हैं,
تو سینٹرل پنجاب میں اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ عمران آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان کا ہے. ان کا جو دوسرا ٹیسٹ ہوگا وہ پھر کراچی میں ہے کہ کراچی میں کیا عمران خان واقعی ہی عمران خان کا بیانیہ اس وقت کام کر رہا ہے. اور کراچی میں چونکہ ایک کمپلیکسٹی بھی ہے وہاں کی پالیٹکس میں، تو وہاں پر بھی دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کیا مل کے کسی الیکشن میں لڑ سکتی ہیں، اور اگر لڑ بھی لیں، فرض کیا وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور جیت جاتی ہیں الٹیمیٹلی، تو کیا 2018 میں وہ اپنا یہ اتحاد برقرار رکھ پائیں گی یا نہیں. تو مجھے یہ ایک خود کراچی کا جو کراچی کے ڈائنامکس ہیں وہ اس میں عمران خان کا جیتنا یا ہارنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان دو جماعتوں کے اتحاد کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا. تو لہٰذا عمران خان اگر وہ اکراس دا کنٹری جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو لہٰذا یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. ویری انٹرسٹنگ، ویری سالڈ پوائنٹ. شوکت پراچا صاحب، آپ کا انالیسس کیا ہوگا کہ ان ضمنی الیکشنز پہ کس کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے؟ خاص طور پہ کیا عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ ابھی تک اپریل کے بعد سے لے کے اب تک، کیا وہ دوبارہ ایک بار پھر ان کے الیکٹورل ٹیسٹ میں ڈھل سکتا ہے؟ کوئی اپسٹ مل سکتا ہے خان صاحب کو یا PDM کو؟ 58 جلسے ہوں یا 158 جلسے ہوں، عمران خان نے اپنی کینڈیڈیچر کا اعلان تو کیا ان حلقوں میں، لیکن وہ کیمپین وہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں کر رہے. ان کی کیمپین تو دوسری ہے. ان کی کیمپین یہ ہے کہ پاکستان کو آزادی دینی ہے، کال دینی ہے جہاں ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے. دوسرا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے عمران خان کا کہ فرض کیا آپ لوکل ہیں اس کنسٹیچوئنسی سے اور آپ نے کبھی الیکشن بھی جیتا ہے، اب آپ کو سڈنلی پتہ چلا کہ میں نے تو نہیں لڑنا، عمران خان نے لڑنا ہے، اور یہ بھی ہے کہ عمران خان نے لڑ کے پھر سیٹ چھوڑ دینی ہے. تو جو آپ کے سپورٹرز ہیں، جو فالوورز ہیں، ان پہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو امپریشن نہیں پڑے گا. وہ موٹیویشن کا لیول جو ایک لوکل لیول پہ ہوتا ہے وہ نہیں بنتا. تیسری بات، حبیب صاحب سے مختلف بات کر رہے ہیں. تیسری سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کا خود کینڈیڈیچر ہونا، ان کا اپنا اپینین ہے، میں تو اپنی اپینین دوں گا. مجھے انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف کے اپینینز آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کھڑا ہونا یہ ایک نیگیٹو میں گروس روٹ پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں نا، ایک بڑا لیڈر ہے، آخر کانسٹیچوئنسی تو میاں والی ہے نا، ان کا اپنا جو ہوم ہے، ہوم کانسٹیچوئنسی ہے، وہ میاں والی ہے. بٹ پاکستان کا آئین بار نہیں کرتا کہیں سے لڑنے کو، لیکن پھر جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز آتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے، دیکھیں نا، کل تک تو انسرٹنٹی تھی نا کہ پتہ نہیں الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس غیر یقینی کی وجہ سے کسی نے وہ جو پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، کنویس کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. یہ بات درست ہے حبیب اکرم صاحب کی کہ ننکانہ میں اور فیصل آباد میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. اچھا، سملرلی پشاور کی سیٹ پہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہے. میں مردان والی سیٹ پہ، چارسدہ والی سیٹ پہ وہ اتنا کمپٹیشن نہیں دیکھ رہا. اچھا، میں کراچی ملیر والی سیٹ پہ اتنا کمپٹیشن نہیں دیکھ رہا. دوسری جو سیٹ ہے جو لانڈی والی ہے، اس میں انڈسٹریل ورکرز ہیں، موسٹلی جو پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں، تو وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کراچی والی جماعتوں کو. لیکن چونکہ وہ ہیں پالیٹکس میں بہت عرصے سے، تو یہ جو پرسنٹیج کی بات کر رہے ہیں، اگر 11% والے بھی MNA بن کے بیٹھ سکتے ہیں، الٹیمیٹلی تو یہ ہے کہ who wins and who loses. تو وہ 11% کی بیسس پہ دیکھنا یہ ہے کہ 11% کون لے کے باہر آتا ہے. یہاں پھر لوکل فیکٹر آ گیا کہ اگر ایمن ولی خان بیٹھ کے چارسدہ میں یا مولانا قاسم جان بیٹھ کے مردان میں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، یا مثلا عابد شیر علی ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں ایک ایسا کینڈیڈیٹ جو جلسہ تو کر سکتا ہے لیکن اس کا فوکس اس کانسٹیچوئنسی کی بجائے ملک پہ ہے. مطلب جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں عمران خان نے، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہو سکتا ہے پھر؟ آؤٹ کم ڈس ایڈوانٹیج جن کے حق میں آئے گا تو آؤٹ کم انہی کے ڈس ایڈوانٹیج میں جائے گا. لہذا یہ فیصل آباد، ننکانہ ویری ٹف کمپٹیشن، بٹ چارسدہ مردان ناٹ دیٹ ٹف کمپٹیشن. پشاور ویری ٹف کمپٹیشن. آپ ایک ملا جلا رجحان دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ملا جلا نہیں ہے، اس کا ایک اور اینگل بھی ہے. دیٹس آلسو ویری انٹرسٹنگ، ویری ویری انٹرسٹنگ. یہ 9 سیٹیں تھیں، شکور شاد صاحب واپس آ گئے، 8 بچ گئیں. کرم والی پہ ہو نہیں رہا تو باقی بچ گئیں 7. اب 7 کی 7 PTI کی ہیں آل ٹوگیدر. جیسے پچھلی 20 میں سے 5 وہ اپنی سیٹیں ہارے تھے پنجاب میں، تو یہ 7 کی 7. اس میں فرض کیا اگر 4 سیٹیں
फेडरल गवर्नमेंट की पार्टीज ले जाती हैं इत्तेहादी तो उनके लिए हुकूमत, विन विन होगा। उनके लिए सिर्फ विन विन नहीं होगा, उनके लिए विन विन डबल सेंस में होगा। एक ये अच्छा, क्योंकि ये दोनों बड़ी पार्टीज लड़ रही है ना, पीपल्स पार्टी और PMLN, अगर इनको 4-5 सीट मिल जाती हैं तो एक और इत्तेहादी की बारगेन से ये बच जाएंगे। ठीक। वो बाप हो सकती है, वो MKM हो सकती है, वो काफ लीग हो सकती है। तो इसका ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि नून को 3-4 मिल जाती हैं या पीपल्स पार्टी 3-4 निकाल लेती है, एडिशनल आ जाती है, एडिशनल आ जाती हैं। आप एक अभी आपको ताना मिलता है कि 2 सीटों पे, 3 सीटों पे आप खड़े हुए हैं, तो फिर आप कम से कम 7 या 8 सीटों पर खड़े हो जाएंगे। एग्जैक्टली कि आप अपने फुटिंग पे खड़े हो जाएंगे। ओके, ठीक है। हबीब साहब, आप इससे एग्री करेंगे इस आर्गुमेंट से? देखिए जहां तक इन सीटों के जरिए हुकूमत को कुछ मजबूत करने का तासुर है, तो मैं इससे बड़ी अदब के साथ जसारत करूंगा इख्तलाफ की। अच्छा। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी जो यानी 2018 के इलेक्शन में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो इस वक्त अपोजिशन की पार्टी है और हुकूमत यानी अपने ऐवानों से बाहर, असेंबली से बाहर बैठी हुई है। तो ये 2 पहियों की जो गाड़ी थी वो एक पहिए पे चल रही है। इस एक पहिए को ज्यादा मोटा कर लें, ज्यादा छोटा कर लें, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लिहाजा हुकूमत की जो सियासी साख है उसके ऊपर तो गरीदा वो अपना क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात यह है कि इमरान खान जो है वो हल्का जाती सियासत नहीं हो रही, यानी इन हलकों में जो उनके मुखालिफिन है वो तो हल्का जाती सियासत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान हल्का जाती सियासत नहीं कर रहे, और ना वो लोग जिन्होंने 2018 में नशिस्तें जीती थी। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इमरान खान का यहां से जीतना दरअसल उनकी हल्का जाती सियासत को मुतासिर नहीं करेगा, बल्कि किसी न किसी दर्जे में उनकी सियासत को मजबूत करेगा। और अगर एक दफा वो यहां से जीत जाते हैं तो अल्टीमेटली ये नतीजा ये होगा कि उनकी पार्टी जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो लिहाजा अगर ननकाना साहब में ब्रिगेडियर इजाज शाह की सीट पर इलेक्शन हो रहा है या छोड़ा गया, उन्होंने सीट छुड़वाई गई है उनसे, तो ब्रिगेडियर इजाज शाह के नाम से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह आप फैसलाबाद में फारूक हबीब के नाम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे पेशावर में शौकत के नाम से, और इसी तरह मर्दान में मोहम्मद अली के नाम, अली मोहम्मद के नाम से। तो लिहाजा ये जी अली मोहम्मद खान, तो लिहाजा जौहरी तौर पर आप इसको हल्का जाती इलेक्शन उस तरह कह नहीं सकते। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि एक शख्स जो है वो 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहा है और सारी जमातें उसके मुखालिफ है, यानी 1 to 1 मुकाबला है। तो ये तो अपने तौर पे बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हो रहा है हमारे सामने। अच्छा, इफ्तिखार साहब की पहले आप उधर जाएं, उससे पहले देखिए ये तेहरान का मेयर का इलेक्शन नहीं है, सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है कि एमडी नजाद तेहरान का मेयर अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा तो पूरे मुल्क में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जाएगा। ये हल्के ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर जितने भी आप पॉपुलर हैं, अगर आप 272 में से 172 जीतेंगे तो 342 तो वैसे टोटल है ना, तो आपके पास 172 की अक्सरियत होगी तो आप गवर्नमेंट बनाएंगे। लिहाजा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और स्पेशली पंजाब में तो जो लोकल इन्फ्लुएंशियल हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 इन्फ्लुएंशियल हैं, वही 75 साल से वही लड़ते आ रहे हैं। तो लोकल फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल फैक्टर को चाहे वो केपी हो, वो सिंध हो, वो पंजाब हो, उसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। हबीब अकरम साहब का पॉइंट भी आपने सुन लिया। शौकत पराचा साहब की सवाल करेंगे इफ्तिखार अहमद साहब से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इफ्तिखार साहब, यही पॉइंट लेके आपकी तरफ आऊंगी, क्या इमरान खान के लिए हल्का जाती सियासत इंपॉर्टेंट होगी, हो सकती है? जैसा कि हबीब अकरम साहब कह रहे थे कि उनका फोकस इस वक्त एक बिगर पिक्चर है, एक वाइडर स्कोप पे उनका फोकस है। वो इस वक्त पूरे मुल्क के लिए हकीकी आजादी की कैंपेन चला रहे हैं, वो पूरे मुल्क के लिए आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि शौकत पराचा साहब कहते हैं कि नहीं, छोटे छोटे हल्के इंपॉर्टेंट है, दैट मेक्स द बिगर पिक्चर। आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या ये एक प्रोलोग, एक प्रेल्यूड साबित हो सकता है इमरान खान के लिए जनरल इलेक्शंस की राह हमवार करने के लिए? अल्लाह जाने क्या बातें कर रहे हैं हम। क्या इससे पहले जुल्फकार अली भुट्टो ने एक से ज्यादा इंतखाबी हल्कों में इलेक्शन नहीं लड़ा था? क्या तारीख को तारीख रहने दें। और सारी नशिस्तें अगर इमरान खान 6 अगर एक में हार गए थे मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब मुफ्ती महमूद से, तो अगर सारी सीटें जीत भी जाएगा तो फिर वापस बाई इलेक्शन,
तो व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या है कि ये गैर संजीदा सियासत है जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, और मैं इसको कुछ भी नहीं समझता। मासूम कि वो उसको जलसे करने का मौका मिलने की जरूरत थी, जस्टिफिकेशन वो पैदा करना चाह रहा था, और वो इन हलकों में अपने लड़कों को और अपने वर्करों को मोटिवेट करना चाहता, जो उसका हक है, और मैं उसके हक को तस्लीम करता हूँ। ये कहना कि आइंदा जब कभी इंतखाबात होंगे तो इस नताइज का उस पर असर पड़ेगा, मैं नहीं समझता कोई असर पड़ेगा। एक जैसे ये इंतखाबी नतीजा आएगा उसके बाद वो एक नशिस्त रखने जो चाहेंगे, पसंद करेंगे, वो साबिर मियां वाली की होगी, उसको तो वो छोड़ेंगे नहीं। तो फिर इन सारे इलेक्शन इन हल्कों में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात होंगे, फिर एक नया रन होगा, तो फिर वो इन सारी नशिस्तों पे आके इलेक्शन लड़ेंगे। असल में वो सिस्टम को इतना डिस्टेबलाइज कर देना चाहते हैं हर सतह पे कि लोग कहेंगे यार छोड़ो, फजूल चीज है ये सारी। अब आप समझते हैं इफ्तिखार साहब कि इमरान खान सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं? और किस सिस्टम? यस बिल्कुल, मैं समझता नहीं हूँ, मैं मानता हूँ। किस सिस्टम को, किस रियासती सिस्टम को या सियासी सिस्टम को डिस्टेबलाइज? मैं दोनों ही सिस्टम्स को। और उसका फायदा इमरान खान को क्या हो सकता है? इमरान खान की एक बहुत बड़ी गेम प्लान है, ये उसका एक हिस्सा है। शायद इमरान खान खुद उस गेम प्लान के लिखने वालों में से नहीं है। जिस किसी ने भी ये प्लान बनाया है कि उसको बेहतर पता होगा, शायद इमरान को भी इतना बेहतर पता ना हो। मुझे बताएं कि ये जो इलेक्शन होगा सब जीत गए, सारी नशिस्तें जीत गई। यहाँ पे तो बड़ी बातें हुई है ना, बड़ी टेक्निकल डिबेट हुई है। मैं उस टेक्निकल डिबेट में यकीन रखता, मैंने तो पहले कह दिया है कि देखना ये है कि उस रात मुकाबलतन पिछले इंतखाबात के मुकाबले में, ज़िमनी इंतखाबात के मुकाबले में वोटों की तादाद में कितना इजाफा होता है, वो साबित करेगा कि वो नहीं वो साबित करेगा कौन क्या खड़ा है, कौन कितना पॉपुलर है, उसमें कितना पॉपुलर वोट जो है इंडक्ट हुआ है। मेरे नजदीक तो है, लेकिन फिर ये नशिस्तें खाली हो जाएंगी, फिर एक नशिस्त पर वो रखेंगे। जिन पे खान साहब जीत गए, जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गए, उन सीटों पे ओहो, तहरीक इंसाफ भला जीत जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सवाल नशिस्त तो एक रखेंगे ना, नशिस्त तो एक ही रख सकते हैं, सारी नशिस्तों तो नहीं रख सकते। मैं वही गुजारिश करनी है कि डिपेंड करता है कि खान साहब कितनी जीते हैं, तो 7 के 7 जीत जाए या 4 जीत जाए, 3 जीत जाए, 2 जीत जाए, 1 जीत जाए। मैं कहता हूँ 7 के 7 जीत जाए, 7 के 7 जीत जाए। हाँ, फिर क्या होगा? मुझे सिर्फ एक बात देखनी है, खाली होंगी फिर दोबारा। कुछ भी नहीं होगा ना, कुछ भी नहीं होगा ना, एक ही निशिस्त रख सकेंगे ना मियां वाली वो पहले से बाकी फिर दोबारा निशिस्तों पे इंतखाबात तो पहले से है। दरीदा नहीं वो तो है ना, अच्छा, उसको रखना पड़ेगा ना, हबीब साहब आ रही हूं आपकी निशिस्त तो रखनी पड़ेगी ना। To be the member of the parliament, he has to be a member of the parliament. Although he does not believe in that parliament. वो चोरों की, उचक्कों की, बदमाशों की, लुटेरों की और घटिया लोगों की पार्लियामेंट है, और वहाँ पे वो उनके साथ बैठना भी मुनासिब नहीं समझता। ये भी एक तजाद है कि वहाँ पे बैठना भी मुनासिब नहीं समझता और उसके लिए जद्दोजहद भी की जा रही है। मैं इस डिबेट में नहीं, वो तो एक नई पार्लियामान में आना चाहते हैं ना, वो तो एक हकीकी पार्लियामान के अंदर आना चाह रहे हैं। अच्छा हबीब साहब, प्लीज डू नॉट यूज दिस वर्ड हकीकी पार्लियामान। दिस इज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके तहत बनी हुई ये पार्लियामेंट है। मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी अंडर आर्टिकल 5 ये हकीकी पार्लियामेंट है, ठीक है। मुझे ना एक नई पट्टी पढ़ाई जाए कि हकीकी पार्लियामेंट क्या होती है। हकीकी पार्लियामेंट वही है जो वोटों से मुंतखब हो चुकी है, और अब जब दोबारा होगी वो मुंतखब वोटों से होगी। और ये अगर हकीकी पार्लियामेंट नहीं है, नहीं ठहरिए, अगर ये हकीकी पार्लियामेंट नहीं है तो फिर इलेक्शन में क्यों जा रहे हैं? काय को एक ऐसी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं जो हकीकी पार्लियामान ही नहीं है, जिसमें उनका यकीन ही नहीं है, इफ्तिखार साहब जिसमें उनका बिलीफ ही नहीं है। सॉरी, आई कांट बाई दी। हम बात करें, अगर एक सब्जेक्ट पर बात करनी, आई एम अवेलेबल। अगर पॉलिटिक्स में अपनी ख्वाहिशात का इजहार करना, देन आई एम सॉरी। इफ्तिखार साहब, आपके इसी कमेंट पे, आपके इसी एनालिसिस पे कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं हबीब साहब। मुझे किसी के, आई विल नॉट डेयर परवाह करूंगा किसी कमेंट की। मुझसे आपने एक सवाल किया इलेक्शंस के बारे में, हबीब साहब, मैंने किसी से नहीं इफ्तिखार साहब, आपका बिल्कुल एनालिसिस आ गया, आप पूरे एहतराम के साथ, आपका एनालिसिस का पूरा रिस्पेक्ट है, मेरे रिगार्ड है। नहीं, मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, ना मैंने पेशावर जितवाया ना हरवाया है।
अच्छा, मैं ठीक आपके है, सवाल का मैंने ठीक। जो जवाब दिया ठीक है, आपका जवाब आ गया। है और मैं इस आर्गूमेंट में नहीं जाना चाह रहा। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका जवाब आ गया। हबीब साहब जवाब देना चाह रहे हैं अपना। जी हबीब साहब। आपने एक जो नुक्ता उठाया वो था कि एक ये जो बात हो रही है कि सीटें कितनी रखी जाएंगी। देखिए, मैं इस मामले में थोड़ी सी एक वजाहत करना चाहूंगा कि इमरान खान फर्ज किया कि वो सारे इलेक्शन जीत जाए, एक मफरूजा सूरत हाल में फर्ज किया कि वो 7 सीटें जीत सकते हैं, तो वो फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इन सीटों को होल्ड कर सकते हैं और होल्ड करेंगे। जिस तरह इसहाक डार साहब ने 4 साल के लिए अपनी सेनेटर की सीट होल्ड की बगैर फॉर 90 डेज ओनली उठाया, और इसी तरह जिस तरह अभी For 90 days हमारे only. जी फॉर 90 डेज चलिए ऐसे कर लीजिए। और इसी तरह जैसे चौधरी निसार अली खान साहब ने अब तो चूंकि कानून में कुछ तब्दीली हो चुकी है कि वो पिछले जो 2018 के इलेक्शन है वो उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, तो शायद आइंदा अप्लाई करना शुरू कर दें। तो अगर आइंदा अप्लाई होता है, ये क्या इसी असेंबली के अंदर अप्लाई होना था या आइंदा इलेक्शन से अप्लाई होना है वो कानून, बहरहाल ये एक डिबेट रहेगी आगे चल के और काफी दिलचस्प डिबेट रहेगी। अब देखना यह है कि उस डिबेट का नतीजा क्या निकलता है। और दूसरी बात इसमें हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये जो खेल है ज़िमनी इलेक्शन का, ये अनदर 3 मंथ्स के लिए खेला जा सकता है, यानी तकरीबन 4 महीने के लिए मजीद खेला जा सकता है, उसके बाद नहीं ये खेला जा सकेगा, क्योंकि जब पार्लियामेंट की मुद्दत 180 दिन से कम रह जाएगी तो फिर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होगा। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट वंस अगेन। लेकिन इन ज़िमनी इलेक्शन का शौकत पराचा साहब नवंबर गुजर चुका होगा। ओके ये हफ्ते की बात है। लेकिन नवंबर के बाद अगले 6 महीने आने हैं, अगला 1 साल आना है। प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। इफ्तिखार अहमद साहब, शौकत पराचा साहब, हबीब अकरम साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शौकत पराचा साहब, इस ज़िमनी इलेक्शन का क्या कोई इम्पैक्ट हो सकता है लॉन्ग मार्च के ऊपर? और खान साहब की कॉल फिर आ सकती है, और लॉन्ग मार्च होगा नहीं होगा? एक्चुअली दोनों सूरतों में खान साहब पे इम्पैक्ट पड़ेगा, और दोनों सूरतों में लॉन्ग मार्च की डिटर्मिनेशन उनकी वो मजबूत होगी। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 7 की 7 सीटें जीत जाते हैं और वो उनको होल्ड करते ज्यादा हैं, सीटें जीत जाते हैं, नहीं 7 है ना अभी, तो बाद में ज्यादा होगी ना, अभी तो 7 है ना। 7 में से लेट्स सपोज अगर वो मेजॉरिटी जीत जाए, मैं कह रहा हूँ 7 जीत जाते हैं, फर्ज किया, ठीक, तो ही विल हैव अनदर ओथ कि देखें अवाम तो मेरे साथ है। आज भी जिहाद 4 में फिर जिहाद का किया ना उन्होंने ओथ, ठीक। अच्छा, फर्ज किया वो 7 सीटें हार जाते हैं, तो देन ही विल से कि जी वो ही विल फील फ्रस्ट्रेटेड, देन धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने ये किया, इलेक्शन कमीशन ने वो किया। सो बात यह है कि इमरान खान डर कर घर बैठने वाले नहीं है। ओके, इमरान खान घबराने वाले नहीं है। इमरान खान आखिरी बॉल तक लड़ने वाले हैं। इमरान खान हार को फेस करके वो डिसहार्ट होने वाले नहीं है। तो अगर आप कहें कि वो पीछे हट के बैठ जाएंगे 7 सीटें हार के, या 5 हार के, या 6 हार के, या 4 हार के, इमरान खान ने तो आगे चलना है ना। लेकिन आगे क्या है इमरान खान साहब के लिए? उनकी जो मई की लॉन्ग मार्च की कॉल थी वो भी कैपिटलाइज होती नजर नहीं आई किसी सियासी गेम के अंदर। इफ्तिखार साहब ने कहा है ना कि बाई देन नवंबर गुजर चुका होगा, वो आपको तो इतनी बड़ी वो खबर थी। नहीं, ये तो 16 अक्टूबर को हो रहा है ना ज़िमनी इलेक्शन, नवंबर तो खैर अभी बहुत दूर है ना। फिर वो दरमियान में लॉन्ग मार्च, आपको लॉन्ग मार्च होता हुआ नजर आ रहा है, और उसमें से कोई खान साहब के लिए कोई पॉलिटिकल गेन हासिल होता नजर आ रहा है, या कोई भी गेन जो वो खान चाहते हैं? साहब की एक ऑब्सेशन बन गई, बार बार वो उस अपॉइंटमेंट में फंसे हुए हैं। खान साहब बार बार जलसों में कहते हैं कि जी वो ये जो तैनाती है इसने मुल्क की सियासत को पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। इट मीन के खान साहब के अपने ज़हन में ये आ गई है एक बात कि बस यही कुछ है। अब खान साहब उससे ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। ये जो डेली बेस्ड मैसेज होते हैं, डेली बेस्ड मैसेज होते हैं, कभी मिस्टर एक्स, कभी मिस्टर वाई, कभी मीर जाफिर, कभी मीर सादिक, तो खान साहब का तो एक स्पेसिफिक टारगेट है ना। खान साहब, हबीब अकरम साहब भी लाहौर में है, इफ्तिखार साहब भी लाहौर में है, तो लड़ाई तो लाहौर की हो रही है, लड़ाई तो जीटी रोड की हो रही है। हमें आपको कौन पूछता है? कराची को कौन पूछता है? मुल्तान को, फैसलाबाद को, सैलाब जदगान को कौन पूछता है? पिशावर 4 इसको मर्दान को कौन पूछता है?
تو یہ جو بیسیکلی خان صاحب جس پوائنٹ پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ آف کوٹیڈ جی ٹی روڈ کا ہی پوائنٹ ہے. اسی پہ خان صاحب نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں. تو خان صاحب کے سامنے اسپیسیفک ٹارگیٹ ہیں. آئی وش کہ میرے دونوں دوست کوئی ان میں سے گورنمنٹ کالج لاہور کا اسٹوڈنٹ ہو, اس دن فنکشن میں بیٹھا, وہ نعرہ ہم نے بھی سنا تھا اور لاہور میں بیٹھ کے وہ نعرہ لگ رہا تھا, گورنمنٹ کالج میں بیٹھ کے وہ نعرہ لگ رہا تھا. تو آپ کدھر ہم الیکشن کی یا لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں, حقیقی آزادی کی بات کر. حقیقی آزادی وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 75 سال سے حقیقی آزادی نہیں ملی, اب میں عوام کو دے. وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے تو آپ آگے سے دھمکی دیں. آپ نے, میں نے, افتخار صاحب نے, حبیب اکرم صاحب نے دھمکی دینی ہوتے کسی کو. ہماری جرت, ہم کسی کو فون پہ دھمکی دیں. تو خان صاحب کا ایک پورا آڈینس ہے. خان صاحب جن کو سنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ٹیکس پہ جو تنخواہیں لیتے ہیں وہ ہمیں دھمکیاں دیں. یہ کبھی آپ نے یہ باتیں سنی تھی؟ اس بیانیے میں سے پولیٹیکل گین کیا آپ کو خان صاحب کے لیے حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں. مجھے آ رہا ہے جی دیکھیں, ایک بات ہے کہ خان صاحب کو میں ایک بات کی شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ادارے کو جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, لوگ کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اشارے کرتے تھے, بڑے بڑے لوگ, انہوں نے اس ادارے کو جو کھوکھلا پن ان کو نظر آیا ہے, اس ادارے کا جو کھوکھلا پن خان صاحب کو نظر آیا ہے. اچھا, جس ادارے نے ان کو یہاں پہ لا کے بٹھایا تھا, اس کے اندر کے کھوکھلا پن جو ان کو نظر آ رہا ہے, اس کھوکھلے پن کے بارے میں وہ روزانہ گفتگو کرتے ہیں. اب دیکھنا ہے کہ یہ جو گفتگو ہے کیا یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر ہے, پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہے, پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے لیے بہتر ہے, پاکستان کی عوام کی غربت کے خاتمے کے لیے بہتر ہے, یہ نہیں. یہ مجھے صرف دیکھنا ہے. باقی ساری سیٹیں جیت جائیں میں تو کہتا ہوں بڑا اچھی بات ہے. اور یہ حبیب اکرم نے ایک بہت کام کی بات کی ہے اور میں نے وہ لکھ لی ہے کاغذ پہ. اس کا جواب انشاءاللہ میں صبح اپنے آرٹیکل میں دوں گا. جو اس نے ٹائم فریم بتایا ہے کہ چونکہ آج وہ جیتے گا تو پھر اس نے حلف لینا ہوگا, اور چونکہ فلانے نے حلف اتنے سال کے بعد لیا, اس قانون کا اطلاق اس پہ ہوگا. اگر اس قانون کا اطلاق اس کا نہیں ہوگا تو یہ 7 سیٹیں خالی رہیں گی قومی اسمبلی میں, اور 7 سیٹیں وہ خالی رہیں گی. اور تو یہ خالی جو رہیں گی سیٹیں یہ کوئی پی ٹی آئی کے حق میں تو نہیں جائیں گی, پر اس ڈبیٹ میں نہیں جاتا. اگلا پوائنٹ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے, وچ از اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ حبیب اکرم, ویری انٹیلیجنٹ پرسن. اس نے کہا جی کہ اگلا الیکشن سے پہلے 90 دن سے, اگلے الیکشن کے تاریخ سے 90 دن پیچھے الیکشن ہو نہیں سکتے. میننگ بھائی کہ دس از دا لاسٹ الیکشن of the present parliament. This is what he is saying. A very good move and very intelligent move. اس کا جواب انشاءاللہ جو ان کو سنیں گے وہ دیں گے. اچھا, حبیب اکرم صاحب آپ کیا کہتے ہیں عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے؟ آپ کو یہ لانگ مارچ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو بائی الیکشنز ہوں گا ان کا جو بھی ریزلٹ آئے دس وے اور دیٹ وے, جہاں پر بھی وہ ٹلٹ کرے سوے کرے, اس کا امپیکٹ آپ کو لانگ مارچ پہ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اینڈ وٹ کوڈ بی دا پولیٹیکل گین دس ٹائم فار عمران خان from this time's long march? دیکھیے, عمران خان نے بڑا رسک کیا ہے کہ خود کو 9 نشستوں پر امیدوار بنا کر انہوں نے اپنے آپ یوں کہیے کہ اپنا پورا فلینک جو ہے, بلکہ میمنا و میسرا نہیں, قلب جو ہے اپنے لشکر کا وہ کھول دیا ہے اور اس پر اٹیک کے لیے. تو اگر یہاں سے وہ جیت جاتے ہیں اس الیکشن میں, چلیے آپ 7 نہیں 6 جیت جاتے ہیں تو, یا 5 جیت جاتے ہیں 7 میں سے, تو یہ بھی بہت بڑی وکٹری ہوگی. اور اس وکٹری کے اثرات جو ہیں وہ آپ کو لانگ مارچ میں بھی آئیں گے. اور میں پراچی صاحب کی اس بات سے متفق ہوں کہ لانگ مارچ بہرحال ہونا ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان, آپ نے پہلے یہ تعین کر لیں غریدہ کہ عمران خان کا پولیٹیکل گین ہے کیا. کیا ان کا پولیٹیکل گین یہ ہے کہ امیڈیٹلی الیکشن میں چلا جائے تو یہ تو بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا, یا 6 مہینے بعد الیکشن میں چلا جائے تو اس سے پہلے پھر اتنا بڑا لانگ مارچ کرنے کی ابھی کیا ضرورت ہے. تو ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا پولیٹیکل گین ہے وہ کہیں اور ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ پچھلے سال اکتوبر سے آن ورڈ ایک خاص مفروضہ تھا جو اسلام آباد میں گردش کر رہا تھا. وہ یہ تھا کہ اگر ایک شخصیت
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाती है तो उसके नतीजे में PMLN के बहुत सारे लोग ना अहल हो जाएंगे और 2023 का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफर्टेबली जीत जाएगी। अब ये ऐसा अजीबो गरीब मफरूजा था कि जिसने जो किसी और मुल्क में हो तो अफवाह से ज्यादा इसकी हैसियत ना हो, लेकिन इसके ऊपर पूरी की पूरी एक हुकूमत को बदलने की कैंपेन चलाई गई, जिसके नतीजे में हमने अदम एतमाद को आते हुए देखा। अदम एतमाद के लिए लोगों को लेकिन हबीब साहब ये ऐसा मफरूजा भी नहीं था। दरमियान में अक्टूबर आया था, 6 अक्टूबर की एक समरी आई थी जिसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए थे। वो सब चीजें मैं तो उसको देखिए, मैं तो नहीं समझता कि वो कोई बहुत अहम बात थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में बाज़ औक़ात मामूली सी बात ही, बाज़ औक़ात छोटी सी राई जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाती है। तो मैं तो उसको राई का पहाड़ ही समझता हूं और वक्त यही बता रहा है कि वो बेसिकली राई ही थी। तो जो मामला जो हाथ अब सियासत का इतना बड़ा फैसला एक मफरूजे पे हुआ कि हुकूमत बदल दी गई। अब जब हुकूमत बदल दी गई है तो इमरान खान के पास ये लॉजिकल ऑप्शन यही उनका बनता है, पॉलिटिकल गेन बनता है कि वो मौजूदा हुकूमत को उसके गेन से महरूम कर दें। वो जो मकसद उन्होंने हासिल किया था, यानी हुकूमत जो बदली थी कि ताकि नवंबर में एक खास किरदार अदा किया जा सकेगा, तो इमरान खान के नजदीक बिल्कुल रास्ता यही बनता है कि वो उस चलते हुए पहिए में कोई चीज दे दें ताकि वो रुक जाए, या कम से कम ऐसा हो कि उनकी पोजीशन ऐसी बन जाए कि जिसमें वो इस तकरीरी के अंदर कोई मीनिंगफुल जो अपनी इनपुट है वो दे सके। तो लिहाजा उनका जो गेन है दरअसल वो नवंबर से मुतल्लिक ही है और ये वो हासिल करना चाहते हैं। और क्या ये हासिल कर पाएंगे? हबीब साहब क्विकली, फिर शौकत पराचा साहब का मैंने कमेंट लेना है। मुझे लग रहा है कि जो हालात हैं उन हालात में अगर वो उनके लॉन्ग मार्च का साइज डिटरमिन करेगा, यानी दो चीजें अहम होंगी, दो फैक्टर्स अहम होंगे, एक उनका इलेक्शन जीतना और दूसरा उनके मार्च का साइज। मेरा ख्याल यह है कि खाली अगर वो इलेक्शन भी जीत गए तो हो सकता है उन्हें ये इनपुट देने का मौका मिल जाए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अगर इलेक्शन जीत गए, मार्च का साइज अवाम निकल आए तो इनपुट लेने के लिए, लेकिन आइन में तो इसका तरीकाकार दर्ज नहीं है ना। आइन में तो डिफरेंट शौकत पराचा साहब तरीकाकार दर्ज है कि इससे वज़ीर-ए-आज़म की सवाल है कि किसी मफरूजे पे हुकूमत बदलने की बात जो है, पहले वो सफ़ा फटा जो बहुत अरसे से एक सफ़ा था, जो हम 1 पेज कहा करते थे। तो पहले तो वो एक पेज फटा, उसके बाद उस वक्त की अपोजिशन को मौका मिला और वो अपोजिशन उस वक्त की जो थी वो दे आर पॉलिटिशियंस। उन्होंने तो फिर अपनी पॉलिटिक्स की। ये नहीं है कि जी वो उस मफरूजे की वजह से हुकूमत चली गई। नो, पहले वो सफ़ा फटा जिसको हम 1 पेज कहा करते थे, जिसको इमरान खान भी 1 पेज कहा करते थे। इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान दुनिया क्रिएट हो गई। तो वही है जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सपोर्ट हासिल थी, वो विथड्रॉ कर दी। उसका फायदा फिर इन पॉलिटिकल पार्टी ने जो सियासत कर रहे थे, क्योंकि इन्हीं के बंदे थे ना जो उधर जाके बैठे हुए थे। मसलन जो 20-22 सिंध हाउस में नजर आए थे वो थे तो इन्हीं पार्टियों से गए हुए, इन्हीं पार्टियों के साथ उनके राब्ते थे और उनमें से बहुत सारे थे जो फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी ही पार्टी में। उनको तो कोई सुनता नहीं था। सुनने वाले तो जो सुना सकते थे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को वो तो 4-5 ही थे, बाकी तो किसी के साथ उनका राब्ता भी नहीं था। और दूसरा, जहां तक आवाम की बात थी, वो तो टमाटर और आलू की कीमत का भी वो कहते थे फखरिया कि मुझे क्या जरूरत है टमाटर आलू की कीमत क्या है। तो आवाम के साथ भी फासला था, इसलिए जो अपोजिशन थी उस पेज फटने से इनको मौका मिला। अब जो आप दूसरी बात कर रही हैं, आइन देखें, जो तकर्री होगी इनपुट, जैसे सदर मुमलिकत भी कह रहे हैं कि मुशावरत की जाए, मुशावरत से काम किया जाए। तो मादी में बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन हुआ करती थी, मादी में तो हमने नहीं देखा कि कभी मुशावरत हुई हो। दूसरा, अभी जो कुछ अभी चल रहा है, यानी जो पावर स्ट्रक्चर है, उसमें तो आप मुशावरत की क्या गुंजाइश रहती है, मुझे ये बताएं। जब आप इस तरह से हेड ऑन बात करें जाकर। तीसरा अहम चीज है कि इमरान खान 25 लाख लोग ले आते हैं इस्लामाबाद। हमारा आइन तो इजाजत नहीं देता ना कि 25 लाख लोग आके बैठ गए जब तक कि आपके पास 172 उधर नहीं है पार्लियामान के अंदर, जब तक आप अदम एतमाद नहीं कर सकते। तो 75 लाख की बजाय आप 50 लाख लेके आ जाएं, आप पूरा केपी उठा के लें, 2 करोड़ की आबादी लेके आए, तो समथिंग विच इज कॉल्ड द मॉब जस्टिस, नो समथिंग इज कॉल्ड मावरा आइन।
ओके अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब तक वो नहीं होगी इस मॉब के हाथों उस वक्त तक तो हुकूमत नहीं जाएगी। अगर कोई कहे कि जी रिजाइन करेगा तो 2014 में 6 महीने यहाँ ताहिरुल कादरी साहब बैठे हुए थे, इमरान खान के साथ तो थोड़े आदमी थे, मॉब तो ताहिरुल कादरी साहब का था। हाँ। तो उस वक्त अगर रिजाइन लेकिन करना ये बात करके फिर आपने नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो बड़े एक तारीखी लॉन्ग मार्चेज रहे हैं या उनकी जो इलेक्शन की कैंपेन्स रही हैं उन पर भी आपने सवाल निशान उठा कोई दिया। हुकूमतें तो नहीं गई थी, मौलाना साहब भी तो आए लेकिन थे। जमहूरी हक तो इमरान खान का बहरहाल मौजूद है ना कि वो लोग वहां लाके मुतालबा कर सकते हैं। मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन मुतालबात से हुकूमतें तो हमारे यहाँ नहीं जाया करती ना। मौलाना साहब इधर बैठे रहे, बिलावल भुट्टो दरदारी भी लेके आए थे, तो क्या हुकूमत चली गई थी? ओके, इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई विश के टाइम थोड़ा सा होता तो मैं हबीब साहब से इसका पॉइंट ले लेती, लेकिन बहरहाल जितना एनालिसिस हुआ, जितनी डिबेट हुई, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बड़े जबरदस्त पॉइंट्स सामने आए। शौकत पराचा साहब, हबीब अकरम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम। आई सी यू कमिंग मंडे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।